students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the 6th chapter of class 4th science, that is about matter. So as we all know, anything which surrounds us, if it has mass and if it occupies space along with that, it will be considered as a matter. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज आपके सराउंडिंग में जिसका मास होता है यानी कि जिसका वेट होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन मैटर. And because almost everything around us occupies space and has mass, so therefore they all will be considered as a matter only. So now let's start and learn about the chapter. Okay? See, the world around us, हमारे जो surrounding में world है वो variety of things का बना है and that could be living or non-living thing. See, all these things have weight and they occupy space. चाहे living हो, चाहे non-living thing हो, everything has mass, everything occupies space around us. So anything that has weight and occupies space is called matter. The amount of space, अब कितना amount of space एक particular matter occupy करता है, it will be considered as its volume. And जो matter हमारे surrounding में होते हैं, उन सभी की different shapes and sizes होते हैं. कुछ hard है, कुछ soft है. All matter, सभी matter किसके बने हैं? Of very tiny particles जिन्हें आप बोलते हैं molecules. And हर एक particular matter के अंदर molecule का जो arrangement है वो different होता है. That is why different matters have different shape, size and appearances. Now on the basis of arrangement, अब किसी भी matter के अंदर जो molecules का arrangement है वो किस तरीके से है, इस basis पर matter को 3 groups या 3 states में आप categorize करते हो. That is namely solid, liquid and gas. So now we'll talk about this different states of matter. First of all, we have solids. Solids are hard. Solids कैसे होते हैं? Hard होते हैं. Solids की fixed shape, size and volume होता है. We can hold the solids. आप solids को अपने hands में hold कर सकते हो. Solid के molecules जो हैं काफी closely packed होते हैं. They have the least amount of space between them. Solids के बीच में जो amount of space है बहुत कम होता है, इसीलिए they cannot move. And hence, इसीलिए सभी solids की एक fixed shape होती है. For example, table, book, chair, stone, tree, all of these are some solids. However, the shape of some of the solids. लेकिन कहीं क्या होता है, कभी कभी कुछ solids की जो shape है उसे आप change कर सकते हो. कैसे? या तो press करके या कम फोर्स का यूज करते हैं. ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक क्ले टॉयज. आप क्ले के टॉयज बना सकते हो उन्हें प्रेस करके, है ना. आप एक रबर बॉल को प्रेस कर सकते हो, राइट. चलो देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिक्विड्स. लिक्विड्स डू नॉट हैव, सी स्टूडेंट्स, लिक्विड्स की एक डेफिनेट शेप नहीं होती है एंड ना ही लिक्विड्स को आप अपने हैंड्स में होल्ड कर सकते हो बिकॉज दे फ्लो इजीली, राइट. लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में पोर करोगे इट विल टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर. They take the shape of the container in which they are kept or poured into. However, liquids का एक volume जो है वो definite होता है. ठीक है, अब liquids की भी जो fixed shape नहीं है वो क्यों? Because liquids के अंदर जो molecules है students वो loosely packed है, ना कि tightly packed है. ठीक है, इनके molecules के बीच में spaces present होते हैं and therefore liquids के molecules move कर सकते हैं from one place to another and therefore liquids can flow. तो लिक्विड्स हमेशा एक हाई लेवल से लो लेवल के टूवर्ड्स फ्लो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जूस, ऑयल, विनेगर, वाटर, कैरोसिन एंड पेट्रोल, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट गैसेस. गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम. गैसेस का ना तो कोई फिक्स शेप है, ना साइज है, ना वॉल्यूम है. गैसेस क्या करते हैं, जिस भी वेसल में आप गैसेस को डालोगे गैसेस उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर देंगे. ठीक है, एंड वी कैन नॉट होल्ड गैसेस. आप गैसेस को अपने हैंड्स में होल्ड नहीं कर सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट एयर अराउंड अस, तो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो भी गैसेस का ही मिक्सचर है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. नाउ स्टूडेंट, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है. दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and that is why gases have a tendency to occupy the whole space available to them. Gases के पास क्या टेंडेंसी है कि जितना भी स्पेस उनके लिए अवेलेबल होगा वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. ओके, नाउ कंपेयरिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. स्टूडेंट्स, जो मैटर की 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनका आपको एक कंपेरिजन यहाँ पे गिवन है इन अ टेबुलर मैनर. सो लेट्स डिस्कस इट.
सी सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं। सॉलिड्स एक डेफिनेट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लिक्विड्स भी डेफिनेट स्पेस यानी कि एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का भी, लेकिन गैसेस जो हैं वो सारे अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। Solids cannot flow, but liquids and gases can flow. All right. Now let's talk about change of state. A substance can be changed from one state to another. For example, a solid can be changed into a liquid. Student, एक substance को उसकी एक state से दूसरी state में change किया जा सकता है। जैसे कि एक solid को आप liquid में change कर सकते हो। Example यहाँ पे given है, जो water आपके glass में है वो liquid state है। However, जो आइस क्यूब्स फ्रीजर में है वो वाटर की ही सॉलिड फॉर्म है। लेकिन अब ये जो आपने एक सब्सटेंस को वन स्टेट टू अनदर चेंज कर लिया, वो कैसे किया? सी स्टूडेंट, आप सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग प्रोसेस। देन लिक्विड को अगेन सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय कूलिंग, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। देन अगेन एक लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करना है तो अगेन बाय हीटिंग यू विल डू, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। एंड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना अगेन तो उसके लिए कूल किया जाएगा गैस को, एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज कंडेंसिंग। ओके, सी हीट ट्रांसफर, मैटर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। वाटर कैन लूज हीट, वाटर अपने अंदर हीट को लूज करके आइस बन जाता है, एंड हीट को गेन करके अगेन गैसियस वेपर में आ सकता है। तो फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक लिक्विड सॉलिड में टर्न हो जाता है, एंड मेल्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक सॉलिड अगेन लिक्विड में टर्न हो जाता है। इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है? जहाँ पे एक लिक्विड को गैसियस वेपर में टर्न करते हैं, एंड कंडेंसेशन इज अ रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि एक गैसियस वेपर को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, and it is done by cooling that gaseous vapor. Now next comes the topic solution, solute and solvent. तो स्टूडेंट समटाइम्स कभी कभी एक सॉलिड जो है लिक्विड के साथ मिक्स होता है एंड कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सॉलिड उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सॉलिड जो आपको अभी तक दिख रहा था वो जो डिसअपियर हो गया है अब, उसे बोला जाएगा सल्यूट। एंड जो सब्सटेंस अभी भी आप देख पा रहे हो वो है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑल टुगेदर फॉर्म सोल्यूशन। सो बेसिकली जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस थे उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी गेट व्हेन वी मिक्स सैंड विद वाटर? तो सैंड यहाँ पे सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, दोनों को कंबाइन किया आपको मडी वाटर मिला, एंड द मडी वाटर विल बी कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन। Now separating substances from water. Now students, not all substances, अब सारे substances water में dissolve नहीं हो सकते। जो substances water में completely dissolve हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे soluble substances। लेकिन जो water में completely dissolve नहीं हो पाते they are called insoluble substances। Now soluble substances को आप water से separate कर सकते हो by heating। ठीक है, so ये जो process है heating और evaporation का, इसमें water completely vaporize हो जाएगा and जो सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व था वो एज इट इज नीचे रह जाएगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में द सोल्यूशन जिसके अंदर अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हैं उनको एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया जाता है। पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएंगे, वेयरएज वाटर आपका एक सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड मेथड वी हैव सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है कुछ आवर्स के लिए इन अ कंटेनर। अब जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो सारे उस कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएंगे, एंड जो क्लियर वाटर है वो कंटेनर के टॉप में आ जाएगा, एंड आप उसे केयरफुली एक डिफरेंट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। दिस इज द होल प्रोसेस। ऑलराइट, चलो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच वन कैन नॉट फ्लो? इनमें से फ्लो क्या नहीं कर सकता? दैट इज सॉलिड। ऑप्शन ए, कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में चेंज होना, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। ऑप्शन सी। विच हैज अ फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम, दैट इज स्टोन। स्टोन का फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम होगा बिकॉज इट इज सॉलिड इन नेचर। ऑप्शन ए।
Substances that dissolve in water completely. वो substances जो water में completely dissolve हो जाते हैं, they are called soluble substances. Option A is correct. The liquid in which solute is dissolved, उस liquid में जिसमें आप solid को dissolve करते हो उसे कहा जाता है solvent. Option C is correct. Okay, चलो. Now, next we come to fill in the blanks. Number 1, anything that has weight and occupies space, that is called matter. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका weight होता है and space occupy करता है, that is known as matter. A dash has a fixed shape and definite volume, that is solid. Solid का एक fixed shape and एक definite volume होता है. Dash takes up the shape of the container into which they are poured. कौन है ऐसा state of matter जो उस container की shape ले लेगा जिसमें आप उसे pour कर रहे हो? That is liquids. The process of change of liquid into solid. Liquid का solid में convert होना on cooling, that is called freezing. A solid that dissolve, एक solid जो liquid में dissolve हो जाता है, that is called a solute. Alright. Next we come to true and false. Number 1, matter exists in 2 forms. No, it exists in 3 forms, right? So it's false. Molecules are arranged differently in different substances. Yes, true. Solute dissolves in a liquid. Solute liquid में dissolve हो जाता है. Yes, true. Solution is not a mixture. Solution जो है solute और solvent का mixture नहीं है. No, it's false. It is a mixture of solute and solvent only. Heat transfer in matter cause change of state. Heat का जो transfer होता है matter में उसी से उसकी state change होती है. Yes, again it is true. As we come to answer the following question, number 1 we have what is matter. So anything that has mass and occupies space. ठीक है? Anything that has weight and occupies space is called matter. Next, why do solids have a definite shape? Solids की definite shape क्यों होती है? Because the molecules in the solids are very tightly packed. They do not have spaces between them. Therefore, they do have a fixed shape. Okay? What is change of state? Change of state क्या है? The transfer or the conversion of one substance into another substance, into another form. That is known as change of state. And due to transfer of heat in the matter, the changes in states are occurred. What do you understand by insoluble substances? The substances which do not get dissolved in the water completely. They are called insoluble substances. Describe the process of filtration. Support your answer with the help of a label diagram. Filtration process को आपको diagram की help से समझाना है. So you could see they have explained you over here. So in filtration, the solution containing undissolved particles is made to pass through a filter paper. The particles will get collected in the filter paper while the water is collected in a separate container. So this is the whole process of filtration. And this is a diagram which you have to draw along with it for the explanation of filtration process. Okay? The chapter is completed. That's all for today. And I hope you must have understood the different states of matter along with their features. As we will talk very soon in the next session with a new topic. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.